Hello everyone, welcome to JV's IAS. I am Sakshi और welcome back to the series of the Hindu MCQs. So इस सेशन में हम करते हैं द हिंदू से आपके जो मेन न्यूज आर्टिकल्स हैं इंक्लूडिंग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और जो भी अदर रिसोर्सेज हैं करंट अफेयर्स के लिए या फिर न्यूज के लिए, उनसे जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज होते हैं आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए स्पेशली फॉर सीएससी 2021, वो सब हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जेवीज हैज अ प्रीमियम कोर्सेज, इनको आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, स्पेशली द जीएस इंटीग्रेटेड कोर्सेज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021। अगर आप 2021 में अपेयर करने का प्लान कर रहे हैं so join this program, otherwise it will be too late क्योंकि टाइम काफी कम है। Join the JV's individual courses, otherwise these are the individual courses such as for the Indian polity, social issues, current affairs, so and Indian economy, ये सारे courses अगर आप individually join करना चाहते हैं so we have the module courses as well. You can join the Super 50 program अगर आप 22 में अपेयर करना चाहते हैं और 2 साल के लिए आपके पास टाइम है and if you want to prepare in time तो आप ज्वाइन कर सकते हैं Super 50 program. JV's का मेंस गाइडेंस प्रोग्राम भी है एंड JV's हैज अ मेंटरशिप प्रोग्राम एज वेल। इनमें से आप कोई भी कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं बाय डाउनलोडिंग द JV's ऐप। यहाँ पे जाके आप कोर्सेज को एनरोल कीजिए और ये सारे के सारे कोर्सेज आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। ये ऐप डाउनलोड करने का फायदा ये भी है कि यू कैन गेट टू नो अबाउट द डीएनए एनालिसिस, ये सारे सेशंस, करंट अफेयर्स अपडेट्स, सारी चीजें, माइंड मैप्स, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी ऐप में। तो ऐप को फटाफट डाउनलोड करना है और अगर इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट, always you can contact in this number. Okay, so let's start discussing the question. First question is about the composition of National Human Rights Commission. So consider the following statements about the national composition of the National Human Rights Commission. कैसी composition होती है? The chairman should be a retired Chief Justice of India. Chairman एक retired Chief Justice होना चाहिए. Member should be serving or retired judges of Supreme Court. There should be a serving or retired judge of the High Court. Only one person having knowledge. जब यहाँ पे only लिखा होता है ना तो स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए। Only one person having knowledge or practical experience with the respect to the human rights. So see, ये दो स्टेटमेंट्स गलत हैं, हम आपको कॉम्पोजिशन अच्छे से बता देते हैं। See, a commission, this particular commission, Human Rights Commission, National Human Rights Commission, ये जो है it is a multi-member body, एक chairman होता है और 4 उसके other members होते हैं। Chairman, he should be a retired Chief Justice of India. ये statement सही है। Member should be the serving or retired judges of Supreme Court, a serving or retired Chief Justice of High Court. ठीक है, इसने क्या दिया था? A serving retired judge of High Court. ठीक है। Now 2 persons having knowledge or practical experience with the respect to the human right. तो ये होने चाहिए 2 पर्सन। सो कैसे होगी? 1 + 4 5 मेंबर बॉडी। नाउ न्यूज में क्यों है? अभी बहुत ही रिसेंटली हमें देखने मिला ह्यूमन राइट्स डे। अब ह्यूमन राइट्स डे किस दिन आता है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दैट इज योर टास्क। बहुत ही इजी चीज है। अभी हमने देखा, सेलिब्रेट किया था नेशनल ह्यूमन राइट डे, तो यू नीड टू कमेंट डाउन कि कब ये जो है डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के बारे में जो ये थी न्यूज में चल रहा था, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने कहा था द कमीशन हैज प्लेड its role as a quasi judicial watchdog like without fear and favors. और उन्होंने कहा था about strengthening of the human rights at the grassroots level is a collective responsibility of society. ये सारी बातें हुई। Now अब next question पे चलते हैं। So climate is extreme, rainfall is scanty and people used to be nomadic herders. So ये statement किस region को अच्छे से define कर रहा है? African savanna, Central Asian steppe, North American prairie and Siberian tundra. So क्या होता है ना, this is the Central Asian steppe. ये जो आपको extreme climate conditions मिलेंगी, यानी कि जब गर्मी पड़ेगी there will be extreme summer and extreme cold. ठीक है, जो भी आपका जो environment होगा, चाहे वो cold हो चाहे वो hot हो, तो वो temperature जो है वो extreme में जाएगा। तो there is a extreme climate, rainfall there is a scanty rainfall and people जो है वो nomadic हैं। कैसे, वो आप देख लीजिए। Steppes, they are dry, grassy plains, ठीक है, और they basically occur in the temperate climates, जो कि tropics और पोलर रीजन के बीच में आता है ना। तो उसके रीजन में आपको ये देखने मिलेंगे क्लाइमेट जो है इनका
कॉन्टिनेंटल होता है जिसमें टेम्परेचर्स होंगे एक्सट्रीम में होंगे। समर्स आर हॉट, विंटर्स आर कोल्ड। रेनफॉल की बात करें तो 25 to 50 सेंटीमीटर्स की रेनफॉल होगी, तो आपकी वो स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी। एंड द मिड लैटिट्यूड सेंट्रल एशियन ग्रासलैंड्स दे वर वंस होम टू पेस्टोरल नोमैड्स, जैसे कि आप देख लोगे किर्ग्स, कजाक्स एंड कालमुक्स, ये सारे जो पेस्टोरल नोमैड्स थे तब इनको देखने मिलता था। दे वर द होम फॉर दीज नोमैडिक ट्राइब्स। सो ये सारी चीजें देखने मिल गई, तो आपकी वो स्टेटमेंट सही हो जाएगी एज फार एज द स्टेपीज आर कंसर्न। अभी अगर हम उसमें जो बाकी के स्टेटमेंट्स थे, बाकी के जो ऑप्शंस दिए थे, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। साइबेरियन टंड्रा, सो इधर पे जो रेनफॉल है इट इज स्कैंटी, क्लाइमेट इज ऑल्सो एक्सट्रीम, बट जो पीपल हैं दे आर नॉट नोमैडिक हर्डर्स, द प्राइमरी ऑक्यूपेशन इज हंटिंग और गैदरिंग, सो वो भी गलत हो जाएगा। और नॉर्थ अमेरिकन पेरिस की बात की है, यहाँ पे रेनफॉल जो मिलेगी आपको स्कैंटी मिलेगी, क्लाइमेट जो है एक्सट्रीम मिलेगा, लेकिन फार्मर्स मिलते हैं यहाँ पे भी नोमैडिक ट्राइब आपको नहीं मिलेंगी, तो henceforth these two are eliminated. Now moving ahead, next question is about the annual emission gap report. So ये जो रिपोर्ट है कौन पब्लिश करता है? ग्रीन वॉच, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, famously it is known as IUCN, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, UNEP, या फिर none of the above. So when we talk about the emission gap report, it is published by the UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है इसको पब्लिश करता है। अभी रिसेंटली 2020 इसकी रिपोर्ट आई, इसलिए ये जो है न्यूज में है, काफी चर्चाओं में है। सो प्रोग्राम जो UNEP है यही जो है पब्लिश करता है। इट हाईलाइट्स दैट, इसमें बेसिकली 2020 की रिपोर्ट में इट हैड हाईलाइटेड दैट no reduction in the human induced greenhouse gas, मतलब GHG emission में, human induced GHG emission में जो है कुछ भी टाइप का रिडक्शन नहीं देखने मिला है। and the year 2020 would be one of the warmest years on the records. वो तो साल बेसाल आपको देखने ही मिलेगा कि जो भी साल आते जाएंगे they will be the warmest. So the annual report of this UNEP, इसने measure किया the gap between the anticipated emissions and the levels consistent with the Paris Agreement's goal of limiting global warming in this century, as well as below 2 degrees Celsius and pursuing 1.5 degrees Celsius. फाइंडिंग्स क्या है, मेजर फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट की, इसको आप देख लीजिए। सो ये तो आप पढ़ भी सकते हैं, बट ठीक है मैं बता देती हूँ। रिकॉर्ड हाई GHG एमिशन, यानी कि इन्होंने बताया कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो काफी हाई पे था, तो ये जो एमिशन था इट कंटिन्यू टू ग्रो। 2019 से इसने कंटिन्यू किया ग्रो करना। कार्बन रिकॉर्ड एमिशन, सो फॉसिल कार्बन डाइऑक्साइड जो बोली जाती है, एमिशंस जो है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स एंड कार्बोनेट्स, जो इसने बेसिकली दैट डोमिनेट्स द टोटल दिस ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड कॉन्सिक्वेंटली द ग्रोथ ऑफ GHG एमिशन। फॉरेस्ट फायर्स भी थे जिनकी वजह से ये जो है इंक्रीज हुआ, ये भी उसका यूज बोला जा रहा है, एंड लैंड यूज चेंज एमिशन की वजह से भी। देखिए उसके बाद G20, इसमें ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो G20 कंट्रीज है उसके बारे में उन्होंने बताया कि दे अकाउंट फॉर बल्क ऑफ एमिशन ओवर द लास्ट डिकेड। द टॉप 4 एमिटर्स, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, EU, 27 प्लस UK, अब तो ऐसे ही लिखा जाएगा, एंड इंडिया, दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू 55% ऑफ द टोटल GHG एमिशन। ये देख सकते हो, ठीक है। तो G20 कंट्रीज के बारे में हाईलाइट किया है कि इन्होंने टोटल 55% किया है एमिशन का। एंड अगर बात करें इज द GHG एमिशन इज स्लोइंग, सो हाउएवर this particular emission is declining in the Organization of Economic Cooperation, OECD इकोनॉमिक्स में वो हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन जो नॉन OECD इकोनॉमिक्स है वहां पे ये जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, व्हाट आर द 4 हाईएस्ट बल्क एमिटर्स, तो आपको याद रखना है चाइना, US, EU प्लस UK और इंडिया, दीज आर द 4 एमिटर्स, ठीक है। अभी बात करें इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 पैंडेमिक ऑन द एमिशन लेवल्स, तो CO2 emission could decrease by 7% in 2020 as compared to 2019 emission levels. However, atmospheric concentration of greenhouse gases continues to rise. Other greenhouse gases, अगर हम एक्सक्लूड कर दें कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को,
So although CO2 emissions will decrease in 2020, the resulting atmosphere concentrations of the GHGs like CO2, methane, ये सारी जो है वो that is going to continue and that is going to grow. Track record of countries on the way to attain net zero levels. So as of now 126 countries covering 51% of the global greenhouse gas emission have net zero goals that are formally adopted announced under the concentration. ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि 51% है इन कंट्रीज का टोटल कंट्रीब्यूशन इन दिस पर्टिकुलर एमिशन, बट उनके पास गोल्स है नेट जीरो गोल्स, तो एज पर देयर फॉर्मली अडॉप्टेड पॉलिसी. सो अब ये जो है दिस इज अ क्वेश्चन रिपोर्ट थी 2020 की, नाम है एमिशन गैप रिपोर्ट 2020. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राखी गृह. ठीक है, so among the findings at the site, एक ये site है basically which indicates only the early Harappan phase were a female skeleton, fortification and bricks. यानी कि जो साइट में मिला है अब तक, उनका कहना है कि सिर्फ फीमेल के स्केलेटन मिले हैं, फोर्टिफिकेशंस और ब्रिक्स मिले हैं अभी तक. कहां पर? राखी गृह में. द साइट इज लोकेटेड नियर द सीजनल घाघर रिवर. तो इनमें से देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि बहुत सारी अदर चीजें भी मिली हैं, वो न्यूज में भी था, इसलिए हम इसको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. राखी गृह अगर हम बात करें, ये दो चीजें लाइक राखी शाहपुर एंड राखी खास, इनसे मिलकर बना हुआ है. रीजन का नाम है, एक विलेज है हिसार डिस्ट्रिक्ट में. हिसार डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? हरियाणा में, और यहाँ पे जो है ये लोकेटेड है basically 150 kilometers to northwest to Delhi. So it is basically an archaeological site जहाँ पे first time remains मिले थे 1963 में at this particular site. However, the first excavation जो किया गया था वो था 1997 and 1999 में. ये जो site है as like pre-Indus Valley civilization settlement की site है, going back to 6500 BCE. Later it was also a part of the मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 से 1900 BC की बात की जाए. फाइंडिंग में बोला गया है इट इंडिकेट्स दैट द बोथ अर्ली एंड मैच्योर हरप्पन फेजेस वर अ 4600 year old female skeleton, fortification and bricks. Now the site is located at some 27 kilometers from the seasonal Ghaggar river. This is also correct. And 2012 में बोला गया था द ग्लोबल हेरिटेज फाउंड डिक्लेयर्ड राखी गृह इज वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड हेरिटेज साइट्स इन एशिया. ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है. नाउ इसकी आप लोकेशन देख लो, ये है हमारा इंडिया, है ना, दिस इज आवर इंडिया, दिस इज राखी गृह, ये हरप्पा की साइट्स, कालीबंगा, और ये जो बाकी की जो साइट्स हैं वो आप देख सकते हो, है ना, लोथल वगैरह, ये सारी साइट्स हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज राखी गृह का साइट जो कि हरियाणा में है. नाउ न्यूज क्या है? कैटल, बफेलो, मीट रेसिड्यू फाउंड इन द इंडस वैली वेसल्स. इस साइट में आपको बाकी के जो है ये सारे जो रेसिड्यूज हैं वो मिले गए हैं. एक नई स्टडी के अकॉर्डिंग इट हैज फाउंड द प्रेजेंस ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, cattle and buffalo meat in ceramic vessel dating back to the time 4600 years of the 7 Indus Valley civilization as per the हरियाणा और उत्तर प्रदेश में. इनको क्या क्या मिला है? मीट मिला है, बफेलो, कैटल वगैरह का. कहाँ पे? जो वेसल्स थे, सेरेमिक वेसल्स, उसमें, है ना. तो इधर पे भी आप देख लीजिए लोकेशंस है सारी की सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मैच्योर फेज की. तो उस बेसिस पे अगर हम सेकंड स्टेटमेंट जो था, फर्स्ट स्टेटमेंट जो था, उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं. नाउ की टेकअवेज क्या है ये देख लेते हैं. द स्टडी वाज द फर्स्ट to look into the absorbed lipid residue in the pottery from multiple sites including Rakhi Grahi, Farmana and Masudpur. ठीक है, and about 50 to 60% of the domestic animals' bones were found in the Indus Valley sites come from cattle and buffaloes. अगर हम ये जो bones देखे जाए ना डोमेस्टिक एनिमल्स की, 50 to 60% जो मिलती हैं हमें कहाँ की मिलती हैं? कैटल्स एंड बफेलोज की. द हाई प्रोपोर्शंस ऑफ कैटल बोन्स मे सजेस्ट अ कल्चरल प्रेफरेंस फॉर बीफ कंजप्शन. यानी कि ऑब्वियसली दिस इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि अगर आपको हाई प्रोपोर्शंस मिल रहा है कैटल्स के जो रिमेन्स का, तो उससे आपको क्या पता चलता है? उनके कंजप्शन पैटर्न्स पता चलते हैं. कंजप्शन पैटर्न्स पता चलते हैं कि क्या, कि वो बीफ का जो कंजप्शन पैटर्न है उनका वो कैसा था इंडस वैली पॉपुलेशन में, वो सब. एंड ऑल्सो
कंजप्शन ऑफ द मटन एंड लैम्ब। सो ये सारी चीजें पता चलती हैं यार इसी सारी स्टडीज से। सो स्टडी ऑफ लिपिड रेसिड्यू इन द Indus pottery shows a dominance of animal products in vessels such as meat of non-ruminant animals like pigs, ruminant animals like cattle, buffalo and sheep or goat, as well as the dairy animals। ये सारी चीजें these are very very obvious studies जो अगर आपको मिला है तो उनके consumption patterns तो पता चलेंगे। Now while cattle bones have been found in a large number, सबसे ज्यादा cattle bones मिली हैं in the Indus Valley sites, the study found little evidence of the dairy products, although analysis अगर हम करें it involves the extraction and identification of the fats and oils that were absorbed in the vessels। so vessels में fats and oils जो भी absorb हुए थे उससे जो है उन्होंने extraction और identify किया है और ये study conduct की है। ठीक है, तो अब चलते हैं next question पे BTCA। okay, so consider the following statements about the context of the better than cash alliance। एक better than cash alliance काफी न्यूज में था अभी, है ना, BTCA, उस पे ये क्वेश्चन है। तो it is committed to accelerate the transition from cash to digital payments to advance the goal of Paris climate deal specifically। यानी कि हम यहाँ this is basically a transaction from cash to digital payments। कैश से डिजिटल पेमेंट्स का एक ट्रांजेक्शन है किन गोल्स को फुलफिल करने के लिए, पेरिस क्लाइमेट डील को फुलफिल करने के लिए। India is not a member of better than cash alliance। so basically both the statements are incorrect क्योंकि ये पेरिस क्लाइमेट डील का इसका कोई वो जो है एम नहीं है एंड इंडिया इज द मेंबर, इसलिए हम ये जो न्यूज पढ़ रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की जो है द बेटर देन कैश अलायंस। दिस इज अ पार्टनरशिप ओवर 75 प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट्स, कंपनीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऑब्जेक्टिव है बेसिकली टू एक्सेलरेट द ट्रांजेक्शन ऑफ द बेसिकली कैशलेस, सो कैश से डिजिटल पेमेंट्स का, ठीक है, इसमें एडवांसमेंट करेगा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, नॉट द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट्स। ओके, नाउ इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ बेटर देन कैश अलायंस इन 2015। 2015 में इंडिया मेंबर बन गया था जब हमने भी थोड़ा इंडिया ने भी प्रण लिया था फॉर द कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल पेमेंट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सारी बातें जब की जा रही थी तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तौर पर यहाँ पे हमने भी ये सब अडॉप्ट किया था। PMGDY, you know, it is one of the world's largest financial inclusion system. Alliance basically is working with the several state governments and towards the goal of the building knowledge and program where people, government and business they can make and receive the digital payment। ऐसा प्रोग्राम अलायंस बनाई जा रही है जहां पे सेवरल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, प्राइवेट होल्डर्स, ये सारे लोग क्या कर पाए, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट कर पाए और कैशलेस इकोनॉमी को सपोर्ट कर पाए। BTCA basically it is funded by Bills and Melinda Gates Foundation। ये क्या है, ऑब्वियसली ये जो है बेसिकली दिस इज अ वेरी फेमस US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड वीजा। सो ये क्या, UNCDF it serve as BTCA secretariat and BTCA is looking to expand its number of SIDs and total project cost of the project is 38.2 billion USD। significance क्या है, so basically the use of technology to transition from cash to electronic payments। so क्या होगा अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे कैश से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का, तो बेनिफिट्स क्या होंगे, कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, इट हैज द पोटेंशियल टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाएगी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, रिस्क जो है वो कम होंगे, अगर ये होगा तो ऑब्वियसली रिस्क कम होंगे। एनहांसेस द एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर द पुअर, यानी कि जो गरीब लोग हैं उन तक फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि सबको इंक्लूड करना, तो ऑब्वियसली जो गरीबों तक है वो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है पहुंच पाएंगे, वो एक्सेस कर पाएंगे एंड दे कैन सर्व drive inclusive economic growth with the potential for the woman economic development। तो यहाँ पे women के economic development की भी ultimately बात की गई है। so that is how it is going to be significant, the cashless basically the electronic payments। Why news अब देख लेते हैं। इंडिया एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था, बेसिकली देयर वाज यू कैन से a learning session was conducted and it was hosted by Ministry of Finance। तो ये जो सारी चीजें उसमें बात की गई, इंडिया एंड द UN based better than कैश अलायंस। सो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उन्होंने एक होस्ट किया था लर्निंग सेशन को उन्होंने नाम दिया एक्सेलरेटिंग रिस्पॉन्सिबल डिजिटल पेमेंट्स, अनलॉकिंग द रोल ऑफ फिनटेक इन द लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी।
with the leaders of the states and the union territories across the country. ये सारी जो है, it was basically a learning session. So this peer exchange, it is a result of tremendous success and opportunities highlighted during the COVID-19 and is co-organized with the UN based Better Than Cash Alliance. COVID-19 की वजह से there has been a very massive increase in the online payments and digital payments and everything. So उसके बारे में यहाँ पे बात की गई that during the COVID-19 relief efforts, nearly 68,000 crore of the cash was provided as direct benefit transfers directly into the bank accounts of the most vulnerable population. अब चलते हैं next question के ऊपर. The formation of ozone hole in the Antarctic region has been a cause of concern. What could be the reason for the formation of this hole? So 1A, the increased temperature at the polar region due to the global warming, presence of prominent tropospheric turbulence and inflow of chlorofluorocarbons, absence of polar fronts and stratospheric clouds and into the methane and chlorofluorocarbons, presence of prominent polar front, stratospheric clouds and into the chlorofluorocarbons. So see, presence of prominent polar front and stratospheric clouds and inflow of chlorofluorocarbon. So क्या क्वेश्चन है? The formation of ozone hole in the Antarctic region, ये सबसे बड़ा कॉज है कंसर्न का. सो इसका रीजन क्या है? ये है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पोलर stratospheric clouds and basically the clouds which contains water, nitric acids and sulfuric acid, they are mainly formed during the event of polar vortex in the winter and more intense in the south pole. They are basically more intense in the south pole. So this ozone depletion is dramatically enhanced in the presence of the polar PSCs. तो इसी की वजह से जो है वो यहाँ पे आपको ये जो है सिचुएशन देखने मिल रही है. Next one is the International Consortium on Combating Wildlife Crime. It is a collaboration between CITES, Traffic, Interpol, World Customs Organization and World Bank. It is a collaboration between what all? So इसमें आप छोड़ दो सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक को. उसके अलावा these all are the collaborations. सो न्यूज में क्या था और क्या बेसिक है इसके बारे में पढ़ लेते हैं. ICCWC एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है 5 इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का. इनका काम क्या है? बेसिकली टू वर्क टुवर्ड ब्रिंग कोऑर्डिनेटेड सपोर्ट टू द नेशनल वाइल्ड लाइफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड टू सब रीजनल नेटवर्क्स ऑन द डेली बेसिस एक्ट टू डिफेंस द नेचुरल रिसोर्सेज. सो इनके पार्टनर्स हैं साइट्स मिल जाएगा, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फूना एंड फ्लोरा सेक्रेटेरिएट. इंटरपोल है, यूनाइटेड नेशन का ऑफिस ऑन ड्रग and crime, World Bank है and World Customs Organizations हैं. This powerful alliance, it was formally established in the year 2010 at the St. Petersburg, Russia during the International Tiger Forum. तब उसको establish किया गया था. Mission है basically strengthen the criminal justice system and provide coordinated support at the national, regional, international level. क्या combat करने के लिए? Wildlife को combat करने के लिए और forest crimes, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट क्राइम से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको कॉम्बैट करने के लिए एंड टू एंश्योर द प्रीपरेटर्स ऑफ द सीरियस वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट क्राइम विल फेस अ फॉर्मिडेबल एंड कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स. नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फाइनेंसेस. ओके, बेसिकली फिजिकल डेफिसिट पे क्वेश्चन है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फाइनेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंसेस के बारे में. द एवरेज fiscal deficit of state government has always shot above that of the central government during the last decade. The average fiscal deficit of the state government has always shot above that of the central government in the last decade. Most states made their revenue deficit target by increasing the revenue since they are not allowed to borrow from the market. So see, both the statements are incorrect. आपको पूछा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है. अब हम चल रहे हैं इसके आंसर्स पे. एक्सेप्ट ड्यूरिंग 2016-17 स्टेट गवर्नमेंट हैव रेगुलरली मेट
their fiscal deficit target of 3% of GDP, which is much lower than the government's usual deficit of the last 1 decade. This would allay a lot of apprehensions about the state level finances, especially in the wake of the extensive farm loans waivers that many states announced, as well as the extra burden that was put on the state budgets after the Uday scheme in the power of sector induced in 1415. But tabhi bhi most states they ended up meeting the fiscal deficit target to not by increasing their revenue, but by reducing their expenditure and increasingly borrowing from the market. Next question पे चलते हैं. This is about the aurora. Consider the following statement with respect to the formation of aurora. The charged particle ejected from the sun interact with the different gases in the atmosphere, causing a display of the light in the sky known as the aurora. See, geography का topic है. आप सभी से मैं बहुत ज्यादा अच्छे से रेकमेंड करूंगी कि इसको अच्छे से समझने के लिए यू शुड ज्वाइन द कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी कोर्स बाय द JV's IAS. वहां पे आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से इन डिटेल समझाए गए हैं. कभी कभी हमारे न्यूज आर्टिकल्स में ये सारी चीजें हमें मिल जाती हैं, बट हम कंफ्यूज होते हैं इनको कहां से पढ़ें. सो द कोर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी इज हाईली रिकमेंडेड. सो इसमें बोला जा रहा है द चार्ज पार्टिकल विच आर इजेक्टेड फ्रॉम द सन इंटरेक्ट्स विद द डिफरेंट गैसेस. जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि सन से निकलते हैं वो बहुत सारी गैसेस से इंटरेक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में, और उसकी वजह से जो है इट कॉजिंग द डिस्प्ले ऑफ लाइट इन द स्काई, उसको बोल देते हैं अरोरा. इट इज विजिबल ओनली फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ अरोरा की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा वाला. सो इसमें बोल रहे हैं इट इज विजिबल ओनली फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब. सिर्फ हमारे ग्लोब के नॉर्दर्न पार्ट से ही जो है आपको यहाँ पे देखने मिलेगा. एंड आर सीन फ्रॉम द यूएस के अलास्का वाले पार्ट से, कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड. सो इनमें से सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगी क्योंकि इसमें स्पेसिफाई नहीं किया, इसमें सिर्फ अरोरा को बोल दिया, लेकिन सदर्न में तो मिलते हैं, है ना. तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में. The charged particle ejected. So aurora, they occur when the charged particles which are ejected from the sun's surface, called the solar winds, they enter into the earth's atmosphere. तो उसके बाद क्या होता है, they disrupt the magnetic sphere, और फिर उसके बाद जो है उनका वो ब्लाइटिंग बनती है और जो बन जाते हैं. इसके कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिए. ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी बेसिकली. ओके, उसके बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट the aurora borealis and northern lights. So in the northern part, the polar lights, they are called as aurora borealis, or you can say northern lights, and they are seen basically from the US का जो अलास्का वाला पार्ट है, कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड. अरोरा ऑस्ट्रेलिस जो अगर हम बात करें, जो कि सदर्न लाइट्स उनको भी बोला जाता है, इन द साउथ दे आर कॉल्ड एज अरोरा Australis or southern lights, and they are visible from the high altitudes in the Antarctica, Chile, Argentina, New Zealand and Australia. इनका लोकेशन कहाँ है, हमारे ग्लोब के कहाँ है, सदर्न पार्ट पे है. तो सिर्फ नॉर्थ पार्ट पे यू कैन से ये मिलता है, सदर्न पार्ट पे मिलता है. नॉर्थ पार्ट पे यू कैन से, नॉर्दर्न पार्ट में आपको मिल जाएगा अरोरा बोरियोलिस, और सदर्न पार्ट पे अरोरा ऑस्ट्रेलिस. ठीक है, इस वजह से वो जो है स्टेटमेंट आपको गलत हो जाएगी. नाउ न्यूज में क्यों है? अकॉर्डिंग टू द यूएस नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, नॉर्दर्न लाइट्स they that are usually witnessed far up in the polar regions, they can be visible in the region that are more to the south, such as in the northern part of the US. यानी कि अब वो जो लाइट्स है वो थोड़े थोड़े सदर्न पार्ट्स में भी आपको दिखने को मिल रही हैं. एंड ये बोला जा रहा है दिस इज हैपनिंग ड्यू टू व्हाट? दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द सोलर फ्लेयर्स व्हिच emerge from the सनस्पॉट से जो है निकलती है. उसकी वजह से बोला जा रहा है कि जो हमें अरोरा जो नॉर्दर्न पार्ट में मिलती थी, अरोरा बोरियोलिस, उनको वो हमें यूएस के थोड़े से जो सदर्न पार्ट है वहां पे भी यहाँ पे देखने मिल रही हैं. द फ्लेयर्स इज अकम्पनीड बाय द coronal mass ejection CME, a large bubble of radiation and particles emitted by sun that explode into the space with a high speed. So ये जो बोला जा रहा है this is called to be the possible region. So guys, आज के सेशन में हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो द हिंदू से. आपके द हिंदू से जो भी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो वो मैंने आज डिस्कस किए हैं. आई होप आपको ये सब समझ में आया हो. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि हमने आज एक बेसिक पॉलिटिका क्वेश्चन सॉल्व किया, एक बेसिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन सॉल्व किया.
सो ये सारी चीजें जो थी न्यूज में उसी के बेसिस पे जो है वो क्वेश्चंस बने थे। तो उन सब के लिए अगर आपको पर्टिकुलरली कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन द इंडिविजुअल कोर्सेज बाय JV's IAS। यू कैन ज्वाइन दीज कोर्सेज। वी हैव द कोर्सेज फॉर लाइक पॉलिटी, सोशल इश्यूज, करंट अफेयर्स, राउंड ऑफ 365, कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, ऑल दीज कोर्सेज इंडिविजुअल कोर्सेज आते हैं, यू कैन ज्वाइन। अगर आप सारे कोर्सेज को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं सो यू कैन ज्वाइन द इंटीग्रेटेड GS कोर्सेज। मेंस के लिए वी हैव द JV's मेंस गाइडेंस प्रोग्राम and JV's also have the mentorship program. You can join any of these, and if you have time you can join the Super 50 program. Now all of this you can access by going to this particular app, JV's app. Download the app from the Google Play Store and iOS, जहां से भी आपको इसको डाउनलोड करना है आप कर सकते हैं। There you will get access to all these courses. Go, enroll and watch the lessons and get selected. So अगर इस सेशन को अगर आप पसंद आया हो, इफ यू लाइक दिस सेशन, डू सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल, लाइक एंड डू share your comments. Also hit the bell icon. Contact us on the Facebook, Twitter, Instagram and Telegram. And I'll see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.